Morning class 6. I am your teacher, science teacher, and today we are starting our new chapter. Its name is Solutions. Please open your books from the page number 83 and follow your lesson. The first heading of this chapter is about the mixtures. A mixture is made of two or more substances. जब आप दो या दो चीज़ों को आपस में मिक्स कर देते हैं और वो सिर्फ आपस में कंबाइन हो जाती हैं, केमिकली तौर पर मिक्स नहीं होती। केमिकली मिक्स होने का मीन्स होता है कि उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स नहीं होते, तो ऐसी चीज़ को वी कॉल दैम मिक्सचर। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर्स आर देयर कंपोनेंट्स कैन बी ईजीली सेपरेटेड। हम मिक्सचर की चीज़ों को जब चाहें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। द कंपोनेंट्स कीप देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। हर पार्ट मिक्सचर का उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग रहती हैं, वो आपस में प्रॉपर्टीज़ मिक्स नहीं होती। द प्रोपोर्शन ऑफ द कंपोनेंट इज़ नॉट फिक्स्ड। आप चाहें तो मिक्सचर का जो पार्ट ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा कर सकते हैं, जो कम करना चाहें वो आप अपनी मर्ज़ी से कम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ द मिक्सचर कि मिक्सचर की कितनी टाइप्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनस एंड हीट्रोजीनस। प्लीज़ अंडरलाइन देयर नेम्स। होमोजीनस ऐसा मिक्सचर होता है जिसको देखने में आपको उसके अंदर मौजूद चीज़ें अलग अलग नज़र ना आए। द सब्सटेंसेस इन दैट मिक्सचर दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेट्स have a look at the example to further clarify it. These things, they are the example of homogeneous mixtures. If you look at this milkshake, in this milkshake milk is present and some fruit is present. मगर आपको देखने में एक पिंक कलर का मिक्सचर नज़र आ रहा है, आपको फ्रूट और मिल्क अलग अलग नज़र नहीं आ रहे। Similarly, here is the example of a coffee. In this cup you can clearly see a brown colored liquid, but you cannot see the sugar, coffee and milk separately. This kind of the mixture is the example of the homogeneous mixture. Now, take another example. Here is a cup of the coffee. You can see a brown liquid in the cup, but you cannot see the things separately. This is an example of homogeneous mixture. And the second cup, this is the example of the heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture वो होता है जिसके अंदर आपको चीज़ें अलग अलग नज़र आ रही हों। Here are the example of heterogeneous mixtures. Salad. You can clearly see that in this bowl they have put the lettuce, the tomatoes and lime. There are different types of the vegetables in it. Similarly, the pizza is example of another heterogeneous mixture. आपको हर चीज़ अलग अलग नज़र आ रही है. There are sausages on it. There are cheese on it. Similarly, the chocolate cookie. चॉकलेट अलग नज़र आ रही है, कुकीज़ अलग नज़र आ रही हैं. सैंडविच के अंदर भी लीव्स अलग नज़र आ रहे हैं, टोमेटो अलग है, ब्रेड अलग है, हर चीज़ अलग अलग नज़र आ रही है. So the type of the mixture in which you can see the parts separately, they are called the heterogeneous mixtures. Look at the amazing fact. Air is a homogeneous mixture. एयर जिसके अंदर हवा के अंदर जो आप सांस लेते हैं, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनस मिक्सचर. द अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ अ हीट्रोजीनस मिक्सचर. लेकिन जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो हीट्रोजीनस है. वो ऐसे हीट्रोजीनस है कि उसके अंदर एयर भी है, उसके अंदर वाटर भी है, उसके अंदर सॉइल भी है, एंड देन देयर आर अदर न्यूमरस थिंग्स दैट मेक अप आवर एटमॉस्फेयर. So air in itself is the example of the homogeneous mixture. The question is, why do we call blood a heterogeneous mixture? You know, the blood that is found in our body is an example of the heterogeneous mixture. The question is why? Think about it. Why do we call our blood heterogeneous mixture? Look at the table at the bottom of the page. Look at this table. It says matter. मैटर हम किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं या जिसको आप टच कर सकते हैं. Solid, liquid and gas are the three states of the matter. Matter is divided into two parts. Pure substance. Pure substance is the substance that is made of only one type of atoms. And then mixture. Mixture has different things mix in it. नाम से पता चल रहा है mixture.
When many things are mixed together, they form mixtures. Pure substance has two parts further: elements. Elements is made up of the atoms that have same atomic number. The atoms in the elements, they are similar to each other. हर एटम दूसरे एटम से मिलता हुआ होता है और बिल्कुल एक जैसा होता है. देन देयर आर कंपाउंड्स. इन कंपाउंड्स डिफरेंट एटम्स आर मिक्स टुगेदर, मगर वो सिर्फ मिक्स नहीं होते, वो एक दूसरे से आप समझें कि अटैच हुए हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं. एंड दे आर परमानेंटली अटैच्ड विद ईच अदर एंड इट्स नॉट ईजी टू सेपरेट देम फ्रॉम ईच अदर. मिक्सचर की देयर आर टू टाइप्स: होमोजीनस मिक्सचर एंड हीट्रोजीनस. होमोजीनस मिक्सचर हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन. यूनिफॉर्म कंपोजिशन मीन कि वो आपको देखने में बिल्कुल एक जैसा लगता है, उसके पार्ट्स आपको अलग अलग नज़र नहीं आते. एंड हीट्रोजीनस मीन इट्स पार्ट्स दे आर सेपरेटली विजिबल फ्रॉम ईच अदर. स्टूडेंट्स, इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर डिफरेंस ये होता है कि कंपाउंड के अंदर एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच हुए हुए, जुड़े हुए होते हैं. दिस इज़ द कंपाउंड. एटम इसके अंदर बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच हुए हुए हैं, लाइक दिस, एंड इट्स नॉट ईजी टू सेपरेट देम. बट इन मिक्सचर, मिक्सचर के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर नॉट अटैच्ड विद ईच अदर. वो सिर्फ एक दूसरे के साथ ऐसे करके मिक्स हुए हुए होते हैं. बट वेन एवर यू वॉन्ट टू सेपरेट देम, यू कैन सेपरेट देम. जब आप उन्हें अलग करना चाहें, वो अलग हो जाते हैं. Here is another picture to tell you about the homogeneous and heterogeneous mixture. In homogeneous mixture, atoms are mixed like this. That is why बाहर से देखने में आपको चीज़ एक ही कलर की नज़र आती है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ इक्वली मिक्स हुए होते हैं. बट इन heterogeneous mixture, atoms are not mixed equally. The one type of atoms, they are grouped here, and the second type of the atoms, they are grouped here. That is why you can see them separately. Look at these bunties. They are the example of the heterogeneous mixtures because you can see them separately from each other. If you want to take out the yellow ones, you can easily take out the yellow ones. Now, the next type of the mixture that we are going to read today is the solution. Homogeneous mixture का second name होता है solution. Solution is a mixture. Which mixture? आपने अभी तक दो mixtures पढ़े हैं, homogeneous and heterogeneous. तो जो homogeneous mixture होता है, that is also called a solution. Please underline it. Solution के two parts होते हैं. एक होता है उसका solute और दूसरा होता है solvent. Solute वो चीज़ होती है जिसको आप मिक्स कर रहे होते हैं, और solvent वो चीज़ है जिसके अंदर आप मिक्स कर रहे हैं. Sugar, you want to mix sugar in water. The sugar is the solute and water is the solvent. Start underlining that a solute is a substance dissolved in a solvent. And when you mix, उसने कहा है कि जब आप शुगर के अंदर वाटर के अंदर शुगर को आप डिज़ोल्व करेंगे तो शुगर डिसअपियर हो जाएगी. द क्वेश्चन इज़ कि वो शुगर कहाँ गई. द आंसर इज़ हेयर. वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत टाइनी गैप्स होते हैं. शुगर के मॉलिक्यूल्स जाकर उन गैप्स के दरमियान बिल्कुल एडजस्ट हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि शुगर कहीं पे डिसअपियर हो गई है. बट इट इज़ नॉट डिसअपियर्ड, इट इज़ स्टिल प्रेजेंट इन टू द वाटर. द ओनली थिंग इज़ दैट नाउ इट्स मॉलिक्यूल्स, दे हैव एडजस्टेड बिटवीन द स्पेसेस इन द वाटर मॉलिक्यूल्स. The liquid that we drink and the fluids in our body are all solution. Air is an example of the solution. Water in the river, lakes and ocean is also a solution. Earth is covered with a solution of salt and other substances. आपको पता है कि अर्थ के ऊपर 75% जो है वो पानी है, which is present in the sea. और वो सी वाटर जो है वो सेलाइन, वो सॉल्टी वाटर है, उसके अंदर सॉल्ट मिक्स हुआ हुआ है. तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन. तो उसने कहा है अर्थ का जो पार्ट है वो सोल्यूशन से पूरा कवर हुआ हुआ है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स. सोल्यूट की दो टाइप्स होती हैं. एक होती है सॉलेबल.
Soluble is something that can be dissolved in water. For example salt, for example sugar. जो चीज़ सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है दैट इज़ कॉल्ड सॉलेबल. इनसॉलेबल वो चीज़ें होती हैं जो लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती. फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोन्स, फॉर एग्ज़ाम्पल सैंड. आप उसे बेशक कितनी भी देर मिक्स करते रहें दे विल नॉट डिज़ोल्व. वो कभी भी वाटर के अंदर लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगे. तो जो चीज़ डिज़ोल्व नहीं होगी दैट विल बी कॉल्ड इनसॉलेबल, और जो डिज़ोल्व हो जाएगी दैट विल बी कॉल्ड सॉलेबल. Solutions has three characteristics. The liquid is clear. The dissolved material will pass through any filter. And the dissolved material stays evenly spread. सॉल्यूशन को अगर आप एक दूसरे से सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो आप फिल्ट्रेशन के थ्रू उनको सेपरेट नहीं कर सकेंगे. यू कैन सेपरेट इट बट नॉट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, क्योंकि मॉलिक्यूल्स गैप्स के अंदर जाके फिट हो जाते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट ईजी टू सेपरेट दैम. देर आर अदर मेथड्स टू सेपरेट दैम बट नॉट थ्रू द फिल्ट्रेशन.